বাংলাদেশ পাকিস্তানকে তাদের আকাশসীমা ব্যবহার করতে দেবে। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের আইন উপদেষ্টার বাড়ির ভিতর থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি ড্রোন। বাংলাদেশকে হালকাভাবে দেখা মোটেও উচিত নয়, কারণ ভারতের পড়শি দেশ বাংলাদেশের আকাশসীমা ব্যবহার করতে পারে পাকিস্তান। প্রসঙ্গত, শেখ হাসিনা পরবর্তী অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে বাংলাদেশের ভারতের শত্রু দেশ বলে পরিচিত পাকিস্তান অনেকাংশেই বেড়ে গিয়ে। इंडियन मीडिया खुद कह रहा है कि अब पाकिस्तान बांग्लादेश के एयर बेस को इस्तेमाल कर सकेगा और साथ ही साथ बांग्लादेश की जो एयर स्पेस है, जिसको आसमान कहते हैं बांग्लादेश वाले, वो जो फजा है, एयर स्पेस है, वो इस्तेमाल कर लेगा। अब इजाजत दे दी है बांग्लादेश ने। और पाकिस्तान जब बांग्लादेश की एयर स्पेस इस्तेमाल करेगा, एयर बेस भी इस्तेमाल करेगा, तो फिर जो सर्जिकल स्ट्राइक है, जिस तरह से पुलवामा में इंडिया ने की थी, तो फिर हमने फंटास्टिक टी भी पिलवाई थी, तो फिर अगर अब करता है तो पाकिस्तान जो एयर बेस है, इंडियन कह रहे हैं, वो बांग्लादेश का इस्तेमाल करके सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, सेवन सिस्टर और चिकन नेक वाली साइड पर। यानी इंडियन इस वक्त बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि एक सर्जिकल स्ट्राइक आज पाकिस्तान ने भी कर दी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান यूट्यूब चैनल। आशा করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। दोस्तों, आपको बताएं कि हिंदुस्तानी मीडिया कह रहा है कि बांग्लादेश बड़ा बेईमान है और बांग्लादेश ने रेंट पर अपने एयर बेस पाकिस्तान को दे दिए हैं, एयर स्पेस भी दे दी है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को कहा है कि आप हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर वो कह रहे हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान और हिंदुस्तान जंग के दरवाजे पर हैं, तो पाकिस्तान अब फायदा उठा सकता है बांग्लादेश की एयर स्पेस इस्तेमाल करके, और एयर बेस, एयरफोर्स का जो एयरबेस होता है, जिसको विमान घाटी कहते हैं, वो इस्तेमाल कर सकता है, जिससे जो सेवन सिस्टर चिकन नेक के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। यानी पाकिस्तान के लिए जो ऑप्शंस हैं वो बहुत ही ज्यादा और हो चुके, मजीद मिल चुके हैं, यानी ऑप्शंस की जो तादाद है वो बढ़ चुकी है। अब जो हिंदुस्तानी मीडिया दोस्तों वो घबराया हुआ है, वो बांग्लादेश को बुरा भला कह रहा है और वो कह रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने दे दिया है। लेकिन ये इंडियन मीडिया दोस्तों रिपोर्ट कर रहा है। इसके ऊपर एक वीडियो क्लिप भी मेरे साथ एक दोस्त ने शेयर किया व्हाट्सएप, मैंने कहा आपके साथ भी मैं इसको शेयर कर देता हूं। ये वीडियो देखते हैं किस तरह से जो वेस्ट बंगाल मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है और किस तरह से पाकिस्तान बांग्लादेश मिलकर इंशाअल्लाह अजीज भारत की साजिशों का मुकाबला करेंगे। आइए दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। 3, 2, 1 एंड क्यू। পহেলগামে জিহাদি হানার ঘটনার পর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কূটনৈতিক সমীকরণ অনেকটাই পাল্টে গিয়েছে। পরিস্থিতি ভালো নেই। এই পরিস্থিতিতে আরেক পড়শি দেশ বাংলাদেশের ভূমিকাও কড়া পর্যবেক্ষণে রেখেছেন ভারতীয় গোয়েন্দারা। কারণ হাসিনা সরকার পরবর্তী অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে বাংলাদেশের পাকিস্তান প্রীতি বেড়ে গিয়েছে অনেকটাই। যেটা জানা যাচ্ছে, বাংলাদেশ পাকিস্তানকে তাদের আকাশসীমা ব্যবহার করতে দেবে। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের আইন উপদেষ্টার বাড়ির ভিতর থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি ড্রোন। ঘটনার পর স্বাভাবিকভাবেই বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের আইনি উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের সরকারি বাসভবনের নিরাপত্তা। বাংলাদেশের মিডিয়া সূত্রে খবর, এই ড্রোনটিকে ওই আইন উপদেষ্টার সরকারি বাসভবনের খোলা জায়গায় ঘাসের উপর রাখা ছিল। দেখা যায় শনিবার 26শে এপ্রিল স্থানীয় সময় সকাল 8:45 নাগাদ তার বাড়িতে ঘাসের উপর ড্রোনটিকে পড়ে থাকতে দেখেন একজন সাফাই কর্মী। পরে তিনি ড্রোনটি তুলে আইনি উপদেষ্টার ব্যক্তিগত কর্মকর্তা দেলোয়ার হোসেনের কাছে জমা দেন। এরপর আইনি উপদেষ্টার ব্যক্তিগত কর্মকর্তা আইন শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটিকে বিষয়টি জানান। এরপরই আসিফ নজরুলের সরকারি বাসভবনে পৌঁছন ডিজিটাল ফরেন্সিক টিম ও সিটি সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ডিভিশনের অফিসাররা। তারা ড্রোনটি উদ্ধার করে নিয়ে যান। সেটির ফরেন্সিক পরীক্ষা করানো হবে বলে জানা গিয়েছে। বাংলাদেশের ডিএমপি কমিশনার শেখ সাজ্জাদ আলী জানান, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। আইনি উপদেষ্টার সরকারি বাসভবনের নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, এই ড্রোনটি আসিফ নজরুলের বাড়িতে এলো কোথা থেকে? পহেলগামে জিহাদি হামলার পর রীতিমতো সামরিক তৎপরতা শুরু করে দিয়েছে ভারত। ভারতের সবকটি কমান্ড থেকে রাফাল, সুখোই 30, মিগ-21 এর মতো ফাইটার জেট নিয়ে যাওয়া হয়েছে বায়ুসেনা সেন্ট্রাল কমান্ডে। শুরু হয়েছে অপারেশন আক্রমণ।
এছাড়া পাঞ্জাব ও রাজস্থানে সেনার চপার থেকে দড়ি বেয়ে নিচে নামার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে ভারতীয় সেনা, যার পোশাকি নাম হেলিবোর্ন। এছাড়া সমুদ্রেও প্রস্তুত রাখা হয়েছে ভারতের অত্যাধুনিক ও শক্তিশালী রণতরী আইএনএস বিক্রান্তকে। এছাড়া আইএনএস সুরাত থেকে মিসাইল ছুঁড়ে প্রস্তুতির জানান দেওয়া হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে একটি খবর পাওয়া গিয়েছে, তা কিন্তু বেশ উদ্বেগের। ভারতের পড়শি দেশ বাংলাদেশের আকাশসীমা ব্যবহার করতে পারে পাকিস্তান। প্রসঙ্গত, শেখ হাসিনা পরবর্তী অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে বাংলাদেশের ভারতের শত্রু দেশ বলে পরিচিত পাকিস্তান প্রীতি অনেকাংশেই বেড়ে গিয়েছে। এমনকি বাংলাদেশের এয়ারফোর্সের বেসও ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে চাইছে পাকিস্তান। ভারত পাক নিয়ন্ত্রণ রেখার 776 মিটার এলাকা অ্যালার্ট আছে। জানা গিয়েছে, পেহেলগামের ঘটনার পর এই অস্থির পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের জিহাদি সংগঠনগুলিকে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার ও পাক সরকার মদত দিয়ে ভারতের উত্তর পূর্বের 7 সিস্টার্স ও অন্যত্র নাশকতামূলক ঘটনা ঘটাতে পারে। তাই সেনা সবসময় অ্যালার্টে থাকতে হবে। बांग्लादेश के हल्का भावे देखा मोटेও उचित नয়, कारण बांग्लादेश। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से पाकिस्तान अब इस्तेमाल कर सकता है एयर स्पेस और फिर जो एयर बेस विमान घाटी है बांग्लादेश की, और उसका इस्तेमाल करके पाकिस्तान अब जानदार, दमदार, शानदार किस्म का जवाब भी दे सकता है हिंदुस्तान को, अंतभक्तों को, भारतीय सूरमाओं को। और किस तरह से चिकन नेक वाली साइड, फिर आप 7 सिस्टर वाली साइड पर भी सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। ये खुद वेस्ट बंगाल का जो मीडिया है वो बात कर रहा है इसके ऊपर। और फिर आज पाकिस्तान ने एक और सर्जिकल स्ट्राइक भी किया। मैंने टीजर में हाईलाइट्स पॉइंट में आपको बताया था ना शुरू में, वो किया है जी क्वाड कॉप्टर। जी हाँ, क्वाड कॉप्टर एक जासूसी के लिए उड़ाया जाता है। लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान वाली साइड पर थोड़ा सा आया था, बिल्कुल माइनर सा, फिर फौरी तौर पर पाकिस्तान क्योंकि तैयार है, पाकिस्तान इस वक्त चौकन्ना है, रेडी है, और उसने फौरी तौर पर मार गिराया क्वाड कॉप्टर हिंदुस्तान का जो जासूसी कर रहा था, जो रैकी कर रहा था। यानी पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह जो तैयारी है दोस्तों, आप देख सकते हैं किस तरह से पाकिस्तान छोटी छोटी जो हिंदुस्तान इस वक्त जासूसी भी कर रहा है उसके ऊपर भी नजर रखे हुए है। तो भाई ये तो बड़ी डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान एयर स्पेस फिर जो एयर बेस है वो बांग्लादेश की इस्तेमाल कर सकता है अकॉर्डिंग टू इंडियन मीडिया। तो फिर तो भाई अंतभक्तों की खैर नहीं है, क्योंकि जो बांग्लादेशी अवाम है वो हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। और जिस तरह से इंडिया को मुंह तोड़ जवाब बांग्लादेश की तरफ से भी दिया जा रहा है वो भी खुश आइंद है। और मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको दोस्तों बताऊंगा कि किस तरह से पहले पाकिस्तान ने एक बीएसएफ के जवान को पकड़ा, घसीटा, अरेस्ट किया, उसकी दुर्गत बनाई, और अब पाकिस्तान के भाई बांग्लादेश ने आज किस तरह से 2 बीएसएफ के जवानों की दुर्गत बनाई। इसके ऊपर एक मेरे पास वीडियो क्लिप भी है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपको दिखाऊंगा। तो तब तक के लिए मुझे दें इजाजत, और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो के बारे में आपने फीडबैक जरूर देना है। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।